Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the today's session. So the first news which you are going to see from the Hindu newspaper, from the first page is Hamas accepts ceasefire proposal by Egypt and Qatar. So as you may know that the Israel-Hamas war is still continuing in the Middle East. Apart from it, on the foreign page also a similar news, a continuation of that news is there only, where what is the stand of US with regard to the current Israel proposal to attack a particular city is being asked about. Similarly, in the Indian Express, the same news has been covered that hours after Israel strikes Rafah, Hamas accepts Egyptian Qatari truce proposal. So let's have an overview or an overlook of that Hamas and Israel issue right now. So it is advisable that whenever you study such kind of topic where different countries are involved, it would be very good if you have a good knowledge of the maps. So let me draw the map of the Israel. So I am only drawing a rough map. So if this is the state of Israel, this is the West Bank area. And where is Gaza? So the Gaza Strip is here. This is the Gaza Strip or the Gaza. And right now, the city of Rafah, which is the last city which has been left to be attacked by Israel, is somewhere in the south of Gaza. This is the Rafah state. And what Israel has done, yesterday Israel warned the people of Palestine that they have to leave the city because now the Israeli forces are going to attack Rafah, which is here. Now here you will find the country of Egypt. Here you have Jordan. Here you have country of Jordan. Here you have Syria. And on the north, you have Lebanon. And here you will see Mediterranean Sea. So a very probable question can be on the geographical aspects also. For example, there is this particular area known as Golan Heights. So you should know this very well, that Golan Height, the area which is known as Golan Height, was actually part of Syria, and it was occupied by Israel. So right now it is in control of Israel. And there are certain regions of Lebanon also which has been occupied by Israel now. Here you can also see there is a famous sea known as the Dead Sea, which is very famous for its salt content also, highest salt content here. And here is Gulf of Aqaba. गल्फ ऑफ अकाबा, यहां से इजराइल को रेड सी का एक्सेस मिल जाता है. सो रेड सी से डायरेक्टली इजराइल को एक्सेस है थ्रू द गल्फ ऑफ अकाबा. जॉर्डन इज हियर. And right now, when I say the Palestine, the state of Palestine, what is state of Palestine? So if there is a two-state solution, so what is a two-state solution? So two-state solution is basically that there should be two countries. One should be Israel, one should be Palestine. तो अगर दो कंट्रीज बनती है, द वाइट पार्ट वुड बी द इजराइल एंड दिस पार्ट द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप वुड फॉर्म द पैलेस्टीन. So I hope you get a geographical idea of the state of Israel, and basically here is the city of Jerusalem. Jerusalem is here. Mainly we are concerned about Rafah, which is in southern Gaza. So apart from knowing the geographical identity, you should also know the important names. So many of you must know that who is the Prime Minister of Israel right now. It is Benjamin Netanyahu. But many people don't know who is the leader of Hamas. So the leader of Hamas name is Ismail Haniyeh. सो हमास का लीडर जो अभी प्रेजेंटली, हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप के अंदर एक्टिव है. तो जो ये मैंने गाजा स्ट्रिप बनाई थी, यहां पे हमास रूल कर रहा है. वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीन अथॉरिटी या पीएलओ वो रूल कर रही है. सो यू शुड नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन राइट नाउ. सो इट इज महमूद अब्बास.
So these are two important personalities related to the Israel-Hamas war. So again, let's do a revision of what had happened on October 7th. So this date is very important, October 7th of 2023. So this is the date. This is the date on which Hamas actually attacked on Israel, and in this attack around 1,200 people died, around about 1,200 people died, and it actually took over hostages also. So around 250 people, 250 Israelis and foreign nationals who were present in the city of Israel or the state of Israel were taken hostage by Hamas. And right now still around 150 to 170 people are in their custody. कुछ लोग इनमें से शायद मर भी गए होंगे, 30-40 लोग, बट अराउंड 150 से 170 लोग आज भी हॉस्टेज के अंदर हैं हमास के साथ. So this is the backdrop. उसके बाद अक्टूबर 9 2023 से इजराइल ने अटैक स्टार्ट कर दिया, एंड इजराइल ने इतना तगड़ा अटैक किया कि एज ऑफ नाउ 34,000 Palestinians have died. 34,000 Palestinians have died as of now since October 9, 2023. यानी लास्ट 7 महीने के अटैक्स के अंदर अबाउट इतने लोग मर चुके हैं, पैलेस्टीन्स के मर चुके हैं. अब क्या हो रहा है कि जो बाकी कंट्रीज दे हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ट्रूथ, सीज फायर. व्हाट इज अ सीज फायर एग्रीमेंट? सीज फायर का मतलब होता है कि एक बार के लिए वॉर को रोक दीजिए, वॉर को रोक दीजिए, कोई भी हॉस्टिलिटीज नहीं होनी चाहिए. एंड एज ऑफ नाउ विच आर द 2 मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व इन इट? सो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके इजिप्ट एंड योर कतर. सो कतर के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो हमास के लीडर्स हैं, हमास के लोग हैं, जो भी टेररिस्ट भी हो सकते हैं, जो भी हैं वो भी, और इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, ये पर्दे के पीछे या बैकडोर में ये सब बातें कर रहे थे. एंड एज ऑफ नाउ जैसे ही इजराइल ने बोला है कि मैं राफा को अटैक करने वाला हूं, हमास ने एक्सेप्ट कर लिया इजिप्ट और कतर का ट्रूस प्रपोजल. So this is why it was in news. Apart from it, all the facts which have been given, like who has been the leader of Hamas, who is the president of Palestine, etc., and the geographical map of Israel, that is also very important. For example, there can be a very easy question regarding where is Gulf of Aqaba, or whether Israel has access to Red Sea. Then the answer would be yes, because it is through Gulf of Aqaba that Israel can directly approach the Red Sea region. So this is with regard to this news. Moving on, another interesting judgment. So there is a particular university known as the Jamia Millia Islamia. So Jamia Millia Islamia एक famous central university है. It's a university created under Act of Parliament. Act of Parliament के अंदर created है ये, और इसे 2011 से एक minority एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी डिक्लेरेशन मिला हुआ है, यानी इट्स अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट. सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 स्पेसिफिक आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से बात करते हैं. और बेसिकली आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्पेसिफिक राइट्स गिवन है कि वो अपनी खुद की इंस्टीट्यूट्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं जैसा वो चाहे. सो अभी एक क्वेश्चन आया, या अभी एक केस आया हाई कोर्ट के पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास, जिसके अंदर एक लॉ स्टूडेंट, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जब आप लॉ स्कूल में चले जाए तो यू आर ऑल्सो वेरी अवेयर अबाउट योर राइट्स ऑल्सो. सो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक लॉ स्टूडेंट गया, एंड देयर ही सेड कि जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट. ये रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक्चुअल में आईएएस के अंदर और बाकी सर्विस के अंदर इसमें जो कोचिंग के अंदर इसके स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी रैंक्स भी आती है, विच मींस इट्स अ रियली गुड कोचिंग. तो रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करती है, बट दिस इज ओनली लिमिटेड टू, दिस फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग इज लिमिटेड टू एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज एंड विमेन. एंड यहां पे मेन क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यहां पे इसने बोला है कि ये वाला जो राइट है ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी मिलना चाहिए, जिनको अभी ये नहीं मिलता है. एंड इन्होंने क्या इन्होंने पेटिशन में क्या बोला है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो होते हैं ये भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 14 एंड 15
जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, उसके अंदर अगर आपको एक अलग कैटेगराइजेशन करना है, आपको स्पेसिफिक ग्रुप्स को अगर कैटेगराइज करना है, तो उनके लिए अलग से इंटेलिजेंट डिफरेंस होना चाहिए और एक रीजन होना चाहिए उनको अलग ट्रीट करने का। हाउएवर यहां पे क्या क्लेम करा गया है कि ओबीसीज के बैकवर्डनेस में, ईडब्ल्यूएस के बैकवर्डनेस में, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और एससी एसटी विमेन और माइनॉरिटीज के बैकवर्डनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड हाई कोर्ट ने भी इसके साथ एग्रीमेंट करा है कि यस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। अब यहां पे इश्यू क्या आ रहा है? अब आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि आर्टिकल 2930 के अंदर इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप आर्टिकल 15 को रीड करते हैं, जब आप आर्टिकल 15 को रीड करते हैं, सो वहां पे आप फाइंड आउट करते हो कि एक्चुअल में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उसके अंदर देयर इज अ एक्सेप्शन, देयर इज अ एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। The only exception under the reservation policy is with regard to minority education institute कि इसके अंदर में इनको रिजर्वेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट चाहे तो कर सकती है, एज ऑफ नाउ इसमें नहीं किया गया। विच मीन्स एक्चुअल में जामिया मिलिया इस्लामिया को रिक्वायर्ड है ही नहीं कि वो एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा या विमेन ऑल्सो किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन दे, जामिया मिलिया इस्लामिया को रिक्वायर्ड है ही नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शन। सो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर ये एससी एसटीज को रिजर्वेशन देने लग जाता है तो क्या ये बाउंड हो जाता है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और विमेन को देने से? बिकॉज एससी एसटी को अगर ये देता है तो ये इसका मन है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलता है कि आपको एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन देना पड़ेगा? आंसर वुड बी नो। सो जामिया मिलिया इस्लामिया एक्चुअल में बाउंड नहीं है, बिकॉज ये एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं? आपको जो भी आंसर आता है आप बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास जो होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिकॉज इसी साल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिससे इसका स्टेटस चेंज हुआ है। सो यू हैव टू टेल मी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट राइट नाउ। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू एंड इट्स अ रियली गुड जजमेंट टू बी रेड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। Delhi LG recommends NIA probe against Kejriwal over alleged funding from SFJ। So ये बहुत ही फैक्चुअल न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, बट यहां पे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। एक तो आपकी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है NIA और एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है SFJ। सो इन दोनों इंस्टीट्यूशन या दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। सो फर्स्ट इज योर NIA विच इज नोन एज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। National Investigation Agency. This agency was created by NIA Act of 2008 and it was created after the 26/11 Mumbai attacks. So don't get confused, 9/11 तो आपका ट्विन टावर अटैक था जो यूएस में हुआ था, एंड 26/11 इज द मुंबई अटैक्स। इफ यू रिमेंबर अजमल कसाब एक्सेट्रा, जिन्होंने ताज होटल पे, ओबेरॉय होटल्स पे जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके अंधाधुंध गोलीबारी करी थी, एंड many people of India actually died in that attack. Many Israelis and many foreigners also died because उनका मेन काम क्या था कि मुंबई को अटैक करना है और मुंबई का जो स्टेटस बना हुआ है एज अ कमर्शियल कैपिटल उसको कहीं ना कहीं हार्म हो। So because of this NIA Act was enacted in 2008। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली ये टारगेट करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है जहां पे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उन सारे केसेस के अंदर NIA के पास इन्वेस्टिगेशन पावर है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर कोई स्टेट के अंदर भी एंट्री करनी हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी आप राजस्थान में और राजस्थान के अंदर इनको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो यूजुअली किसी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, बट NIA को कोई परमिशन नहीं चाहिए। नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो परमिशन रिक्वायर्ड।
सो अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, उसके केसेस, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी से भी जनरेट होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सबके केसेस के अंदर में भी इसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। सो एनआईए का ज्यूरिसडिक्शन किस किस एरिया के अंदर हो गया? आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर, स्टेट की कोई परमिशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगर केसेस है तो उसके अंदर भी, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में या मनी ट्रैफिकिंग केसेस के अंदर, और फोर्थ ड्रग ट्रैफिकिंग, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनका पैसा भी इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होकर टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर यूज हो सकता है। सो इसके लिए एनआईए के पास पूरी पावर होती है इनको इन्वेस्टिगेट करने की। अब इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, विच इज योर सिख फॉर जस्टिस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज योर SFJ, सिख फॉर जस्टिस। सो ये कुछ साल से कुछ ज्यादा ही न्यूज में है, एंड मेनली ये न्यूज में इसलिए बिकॉज इसका जो फाउंडर एंड हेड है गुरपंतवंत सिंह पन्नू। सो आई होप आपने नाम सुना भी होगा, क्योंकि अभी अभी कुछ केस क्या हुआ था कि यूएस के अंदर यूएस की अथॉरिटीज ने कुछ इंडियंस को या इंडियन रिलेटेड एक्टिविस्ट को पकड़ा था, और दे वर प्लानिंग टू किल दिस पर्सन, दे वर प्लानिंग टू अटैक दिस पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी हो गया था। सो अपना डिप्लोमेटिक क्राइसिस पहले ही कनाडा के साथ चल रहा था, बिकॉज वहां पे भी एक सेपरेटिस्ट को मारा गया था, एंड अब यूएस के साथ भी अपना एक डिप्लोमेटिक चैनल या इसमें डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो गया था। सो फाउंडर एंड हेड की वजह से ये था, एंड सबसे ज्यादा ऑल्सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ खालिस्तान, एक स्टेट ऑफ खालिस्तान बनाना है ओनली फॉर सिख्स। बट आप यहां पे देखिए कि ये कैसे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका जो प्रिंसिपल है कितना ज्यादा वायलेटेड है। सो अगर आपको पता हो कि जो आपका पंजाब प्रोविंस है, जो आपका पंजाब प्रोविंस है वो एक्चुअल इंडिया के अंदर भी है और वो पाकिस्तान के अंदर भी है। हावेवर जिस पंजाब या जिस खालिस्तान की ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो पंजाब है उसके अंदर हमें खालिस्तान बनाना है। जो ओरिजिनल आइडिया था खालिस्तान का, उसके अंदर यह था कि जितने भी पंजाबी लोग हैं, जितने भी पंजाबी लोग उस पंजाब रीजन में रहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान होना चाहिए, जिसका मतलब एक इंडिया के अंदर जो पंजाब है एंड प्लस पाकिस्तान के अंदर पंजाब है। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सिख फॉर जस्टिस है, ये सिर्फ इंडिया वाले पंजाब के लिए खालिस्तान की मांग कर रहा है, यानी कि हमें क्या पता पड़ता है कि शायद पाकिस्तान की जो ISI है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। So because of this, it is only claiming कि जो इंडिया का पंजाब है वहां पे खालिस्तान होना चाहिए। एंड सबसे ज्यादा ये न्यूज में आए थे 2020 के अंदर, बिकॉज इन्होंने एक इवेंट करा था नोन एज रेफरेंडम 2020। और इन्होंने रेफरेंडम 2020 किस चीज के लिए किया कि इंडिया वाले पंजाब के अंदर हाउ मेनी पीपल या हाउ मेनी सिख्स वांट कि एक इंडिया पंजाब के अंदर हाउ मेनी सिख्स वांट्स कि यहां पे एक खालिस्तान क्रिएट होना चाहिए। तो इन्होंने एक रेफरेंडम कराया। व्हाट इज अ रेफरेंडम? कि वेयर यू आस्क पीपल डायरेक्टली कि उनकी डिमांड क्या है, येस और नो में सिंपली आंसर पूछा जाता है कि वेदर यू वांट अ खालिस्तान, अ सेपरेट खालिस्तान, और वेदर यू डू नॉट वांट इट। और इन्होंने ये वाला जो रेफरेंडम था ये बाहर की सिटीज के अंदर, आपकी यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, और जहां पर भी सिख डायस्पोरा है, जहां पर भी सिख्स रहते हैं वहां पे ही करा था, और जिसकी वजह से ज्यादा ही न्यूज में आया था। सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मूव ऑन करते हैं। सो अगेन यहां पे आपके दो ऐसी न्यूज आई हैं, एक तो यहां डेज आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी लवली इज वन ऑफ स्टार कैंपेनर्स फ्रॉम दिल्ली, और दूसरा आफ्टर मीटिंग राहुल गांधी नसीम खान बैक ए स्टार कैंपेनर इन महाराष्ट्र। सो आपका एक क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि एक्चुअल में स्टार कैंपेनर्स होता क्या है। सो हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार कैंपेनर कौन होता है और इलेक्शंस के अंदर उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है। सो स्टार कैंपेनर की कोई एक्चुअल में लीगली कोई डेफिनेशन नहीं है। सो अगर अपन मैं जनरल डेफिनेशन लूं तो कोई भी सेलिब्रिटी वोट कैचर, सेलिब्रिटी वोट कैचर फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी पर्सन को बुलाने से वोट्स मिलते हैं तो उसको वो स्टार कैंपेनर डिक्लेयर कर सकती है।
लीगली देयर इज नो बाउंडेशन, विच मीन्स कि किसी भी पर्सन को, किसी भी कॉमन पर्सन को भी आप स्टार कैंपेनर डिक्लेयर कर सकते हो। इट कैन बी अ सेलिब्रिटी, अ फिल्म स्टार एक्सेट्रा। फिल्म स्टार भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एंड एक्चुअली ये मना भी नहीं करता है, इवन अ फॉरेनर कैन बी अ स्टार कैंपेनर। अ फॉरेनर कैन बी अ स्टार कैंपेनर। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कि ही शुड बी अ मेंबर, he should be a member of the political party। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि स्टार कैंपेनर बनने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको उसका मेंबर होना रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज द मेन। अब स्टार कैंपेनर के लिए मेनली लॉ के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सो जब लॉ देखते हो तो उसमें दो चीजें पता पड़ती हैं कि दो टाइप की पार्टीज हैं। एक तो होती है रिकॉग्नाइज्ड आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। एंड रिकॉग्नाइज कौन करेगा? रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती है, जिनको अपन रिकॉग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिकॉग्नाइज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। तो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, ये मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड है नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, वो मैक्सिमम ऑफ 20 स्टार कैंपेनर्स को डिक्लेयर कर सकती हैं। अब स्टार कैंपेनर्स को डिक्लेयर करने का फायदा क्या होता है? सो इनका मेन फायदा होता है कैंपेन एक्सपेंडिचर पे। सो अब आपको पता होगा कि मनी पावर जो है वो इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करने लग गई है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि मनी पावर का रोल कम हो, इसलिए उसने हर किसी इलेक्शंस के लिए, लोकसभा का इलेक्शंस हो या आपके स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, सबके ऊपर एक कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर लिमिट लगा रखी है। सो देयर इज अ कैंडिडेचर्स एक्सपेंडिचर लिमिट कि हर कैंडिडेट हर इलेक्शन के हिसाब से एक स्पेसिफिक अमाउंट ही कर सकता है। सो जो आपके स्टार कैंपेनर्स होते हैं, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, उनका जो इलेक्शन में खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल कि अभी मैं जयपुर में हूं, तो अगर जयपुर में कोई बीजेपी का स्टार कैंपेनर आके, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टार कैंपेनर, और अगर वो यहां आके रैली करते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उसका जो खर्चा होगा वो मेरे कैंडिडेचर, मेरे इलेक्शन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और वो कौन बेयर करेगा? इट वुड बी बेयर बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि हर कैंडिडेट के ऊपर देयर इज एक्सपेंडिचर लिमिट कि आप एक इलेक्शन के अंदर इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो, और जो स्टार कैंपेनर के ऊपर जो भी इलेक्शन के अंदर खर्चा होता है वो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसका पेमेंट पॉलिटिकल पार्टी करती है, यानी कि उसकी एक्सपेंडिचर लिमिट ब्रीच नहीं होती। सो एक बार देख लेते हैं कि प्रेजेंटली क्या क्या लिमिट्स है। तो लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर जो बड़ी स्टेट्स है वहां पे तो आप 95 लाख रुपीस, लोकसभा के इलेक्शंस में आप मैक्सिमम ऑफ 95 लाख रुपीस इन द बिगर स्टेट्स खर्च कर सकते हो, और स्मॉलर स्टेट्स के अंदर आप 75 लाख रुपीस खर्च कर सकते हो। सो रिमेंबर दिस कि आप लोकसभा के इलेक्शंस में 95 और 75 खर्च कर सकते हो। और स्टेट लेवल के इलेक्शंस पे जो आपके एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, उसके अंदर आप बड़ी स्टेट्स के अंदर 28 लाख रुपीस और स्मॉल स्टेट्स के अंदर आप 20 लाख रुपीस खर्च कर सकते हो। सो ये फिगर्स आप याद रख सकते हैं कि 95 लाख रुपीस और 75 लाख रुपीस, और स्टेट लेवल पे 28 लाख बड़े स्टेट्स के लिए और छोटे स्टेट्स के लिए 20 लाख रुपीस आप खर्च कर सकते हो। एंड एक अगर आपको आइडिया दूं तो जो आपकी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस 1951-52 के अंदर, उसमें एक्सपेंडिचर लिमिट थी 25,000 रुपीस, 25,000 रुपीस, और सारी स्टेट्स के लिए सेम थी एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, जहां की स्टेट के लिए सिर्फ 10,000 रुपीस लिमिट थी। अब यहां पे ये समझना जरूरी है कि जो 95 लाख रुपीस है इसके अंदर क्या क्या आया। तो आप समझिए कि पूरे इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर उसने जो बैनर्स बनाए, उसने जो पोस्टर्स बनाए, उसने जो रैली करी, उसने जो अपने पोल एजेंट्स को कुछ भी खाना खिलाया, उसने जो स्टेशनरी खरीदी, सारा का सारा खर्चा इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो आप ऐसे समझ लिए होती है, और वो रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस कंप्लीट होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी जब लोकसभा इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, अभी जब लोकसभा इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, उसके 90 डेज के अंदर, इलेक्शंस खत्म होने का मतलब क्या है? जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे फाइनली, उससे 90 डेज के अंदर उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सारा एक्सपेंडिचर यानी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
आपको डिटेल में आपके सारे एक्सपेंडिचर्स बताने पड़ेंगे विच अ पॉलिटिकल पार्टी हैज incurred in conducting that election, and same is the case for the candidates also. उनकी लिमिट्स अलग अलग हो सकती हैं, किसी के लिए 30 डेज होगी बिगर स्टेट्स में, स्मॉलर स्टेट्स में, और बिगर स्टेट में 40 डेज 45 डेज, डिपेंडिंग कि उस साल का जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है, बट 90 डेज इज द लिमिट फॉर योर लोकसभा इलेक्शन, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 70 डेज की कुछ लिमिट होती है आपके लिए। बट आप अभी लोकसभा इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आपका फोकस होना चाहिए इस 90 डेज के ऊपर कि कितने दिन के अंदर आपको एक्सपेंडिचर बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 90 डेज के अंदर। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, 95 लाख, 75 लाख, 28 लाख, 20 लाख, ये आप आई होप आप नोट डाउन कर लेंगे। सो मूव ऑन करते हैं यहां से। अब यहां पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया, कल के आर्टिकल में भी अपन ने ये सारा डिस्कस करा था, कल के एनालिसिस के अंदर में भी, एंड अगेन दिस इज द सेम केस। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एंड यू शुड नो द नेम ऑफ द जजमेंट ऑल्सो, और उस केस का नाम इज M.K. रणजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। M.K. रणजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसने फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसके एरिया को ब्रॉडन करा है, इंक्रीज करा है। इसने क्या करा है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टू एवरी पर्सन हैज द राइट अगेंस्ट इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपके वेदर, क्लाइमेट एक्सेट्रा जो वेदर फिनोमिनास हैं वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते होंगे कि अगर समर्स आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो रहा है, अगर विंटर्स आते हैं तो वो भी एक्सट्रीम हो रहा है। ऐसा नहीं कि विंटर्स कम हो गए, विंटर्स का ड्यूरेशन कम हुआ है, बट विंटर के दिन जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लो डिग्री में जाते हैं। सिमिलरली अगर रेनफॉल्स होंगी, लाइक एग्जांपल मॉनसून के लिए, पहले क्या होता था, मॉनसून का पीरियड होता था वो बहुत ही एक्सटेंडेड होता था, 2 महीने 3 महीने तक। अब क्या हो रहा है कि मॉनसून हो तो रहा है बट 1 महीने का ही हो रहा है, और 1 महीने के अंदर ही 2 से 3 महीने की बारिश आ रही है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, अब ऐसा है कि अब 1 महीने में इतनी सारी बारिश हो जाएगी तो आप उसको कहीं पे कलेक्ट तो नहीं कर पाओगे, जो आपकी सॉइल है या जो आपकी लैंड है वो भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, सारे का सारी पानी क्या होगा, बह जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी रिस्टोर नहीं हो रहा है। सो ये एक क्लाइमेट चेंज का है। तो यहां पे क्या बोला है कि इस केस के अंदर कि हर पर्सन इन इंडिया उसका राइट है अगेंस्ट इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि यहां पे स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट। आई होप आप फंडामेंटल राइट्स का जनरल प्रिंसिपल समझते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स विच आर गिवन टू एवरी सिटीजन और अ पर्सन विच आर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। स्टेट से यहां पे मतलब क्या हो गया, यहां पे हो गया आपका इंडिया। इंटरनेशनल के अंदर अपन स्टेट को ही, कंट्री को स्टेट बोलते हैं। So it is a state duty to protect or against ill effects of climate change has also become your fundamental right. अब जो ये बेसिक केस था आपका M.K. रणजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअल में ये क्लाइमेट चेंज या इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फंडामेंटल से डील नहीं करता था। एक्चुअल में ये केस था प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो ये पर्टिकुलर केस है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो ये एक बहुत ही हैवी बर्ड होती है एंड इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, एंड दिस पर्टिकुलर बर्ड इज एक्चुअली द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, जिसको लोकल लैंग्वेज में गोदावन भी बोलते हैं। सो इस बर्ड को गोदावन भी बोला जाता है, इट्स द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है बेसिकली जो ओपन फील्ड्स होते हैं वहां पे मिलती है, ये ओपन फील्ड्स में होती है। एंड इफ यू हैव सीन कि आप ओपन फील्ड्स में देख सकते हो कि बहुत सारे आपके हाई टेंशन लाइन करती है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन मूव करती है। सो ये बिकॉज ये बर्ड हैवी होती है, ये बहुत हाइट पे जाके फ्लो नहीं कर पाती है, और यूजली ये हाई टेंशन लाइन से कोलाइड करके इनकी डेथ हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस इनके नंबर भी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। सो अगर आपको पता हो, एक एजेंसी है इंटरनेशनल IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी एक फेमस बुक है रेड बुक,
एंड रेड बुक के अंदर डिफरेंट कलर ऑफ पेजेस हैं, और इसके अंदर जो स्पीशीज, जो आपकी फौना है, जो आपके फ्लोरा है, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो रेड पेजेस के अंदर है। सो ये वाली जो आपकी ग्रेट इंडियन मस्टर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अराउंड 100 से 200 से मैक्सिमम इसके स्पीसीज बचे नहीं है, यानी कि अगर हमने इनको प्रिजर्व नहीं करा तो बहुत जल्दी ही ये सब भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड बुक। एंड ऑल्सो जो आपका फेमस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो फेमस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके शेड्यूल 1 के अंदर इसको भी प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करा हुआ है। इसके अलावा देयर इज अनदर इंटरनेशनल आपका एक कन्वेंशन है नोन एज साइट्स, Convention on International Trade of Endangered Species. Again I'll repeat, Convention on International Trade of Endangered Species. इसके भी ये शेड्यूल 1 के अंदर ऐड है। सो इनको प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली जजमेंट था, बट इस जजमेंट के अंदर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करी है कि यहां पे स्टेट की ड्यूटी है, कि सारी की सारी जो बर्ड्स होती हैं आपकी, या बेसिकली ग्रेट इंडियन मस्टर्ड होती है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये है। एंड बेसिकली जो ये वाला आपका आर्टिकल है, इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जजमेंट बेसिकली प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, बट ये जो कोर इश्यू उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई भी सोलर पावर प्लांट बनाया जाता है या विंड फार्म बनाया जाता है कोई, तो उसमें बहुत सारी लैंड ऑक्यूपाइड होती है। सो देयर इज एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो गए, पेस्चर्स हो गए, उनका डिस्ट्रक्शन होता है। जो उस एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब होती है, एंड इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को भी हर्ट होता ही है। सो ऑल्दो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए बनाए जाते हैं, बट इसका जो क्लाइमेट पे या डायरेक्टली एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट होता है, उसके ऊपर पे कोई भी फोकस नहीं करा गया है। सो इसलिए इस जजमेंट को इन्होंने फ्लॉड बोला है, इसके अंदर ये है। और बेसिकली यहां पे और ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं। और फाइनली इन्होंने यहां पे इंडिया के मॉडल को ही प्रॉब्लम बताया है कि इंडिया के अंदर अपन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बट हम इनके साथ एनवायरमेंट की बात नहीं करते हैं। जो एनवायरमेंटल लॉस है, हम उसकी जब बजटिंग करते हैं उसके अंदर हम एनवायरमेंटल लॉस को काउंट नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से निकाल रहे हो कि कोई रोड बनाने पे कितना डेवलपमेंट होगा, कितना उससे पैसा जनरेट होगा, सो आप बजटिंग के अंदर जो एनवायरमेंटल लॉस होगा उसको भी कैलकुलेट करिए। सो ये इन्होंने फाइनली इस इंडियन मॉडल के अंदर एक फ्लॉ निकाला है। इट्स अ रियली गुड रीड। आई एक्सपेक्ट कि आप इसको रीड करेंगे, बिकॉज ये क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा आपका पैसेज है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज योर टाइम टू टॉक। अगेन एक और आपका एडिटोरियल है, कल भी अपन ने इसी के बारे में बात करी थी। सो बेसिकली आपका फिर से वही मुल्ला पेरियार डैम आ गया है। फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, 2 बार लगातार आ रहा है 2 दिन से, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो मुल्ला पेरियार डैम एक इंटरेस्टिंग डैम है और इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। व्हाई? सो ये बेसिकली जो डैम है ये केरला के अंदर है। सो दिस डैम इज इन केरला, लोकेशन इसकी केरला के अंदर है, बट इसकी ओनरशिप और इसकी मेंटेनेंस बेसिकली तमिलनाडु करता है। एंड क्यों करता है? बिकॉज इस डैम का जो वाटर है, इट इज बेसिकली यूटिलाइज बाय तमिलनाडु, या जो फार्मर्स हैं तमिलनाडु के अंदर बेसिकली वो यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें इश्यू क्या आ रहा है? सो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2021 में। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली 2021 में डैम सेफ्टी के ऊपर, और उसके अंदर इस मुल्ला पेरियार डैम को डीकमीशन बोलने के लिए बोला गया कि दिस डैम शुड बी डीकमीशन्ड, इट शुड स्टॉप वर्किंग। व्हाई? बिकॉज ये एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन के अंदर रहता है, और कभी भी अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और बेसिकली उसके आसपास जो पब्लिक रहती है, हो सकता है अराउंड 1 लाख डेथ हो जाए। सो उन्होंने डेथ फिगर भी बताया एक्सेट्रा। और ऐसा नहीं है कि ये यूएन रिपोर्ट 2021 की फर्स्ट टाइम था जिसमें इस डैम सेफ्टी के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन हो। 2004 के अंदर जब 1-2 बड़े बड़े डैम्स ब्रेकडाउन हुए थे,
देयर वर डैम ब्रेकडाउन्स इन डिफरेंट स्टेट, तब भी ये इशू वहां से, तब उस टाइम से ही केरला इस इशू को रेस करता रहा है। सो बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये डैम बना था तब इसकी हाइट 176 फीट अप्रूव करी गई थी। हाउएवर सिंस इंडिपेंडेंस इसकी हाइट वाज अप्रूव्ड फॉर 142 फीट, 142 फीट। हाउएवर केरला जो था, स्टेट ऑफ केरला, इसने लॉ बनाया और लॉ के अंदर इसने इसकी हाइट बोली कि इट शुड ओनली बी 136 फीट। अब 142 की जगह जब 136 फीट अलाउड हुआ तो जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है वो सुप्रीम कोर्ट गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया और उसने बोला कि आप केरला को बोलिए, आप केरला को बोलिए कि हमें 142 फीट बोले। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 142 फीट की हाइट को अलाउ कर दिया। सो एज ऑफ नाउ द करंट, आपको एक क्वेश्चन जो ऐसे आ सकता है मुल्ला पेरियार पे कि व्हाट इज द करंट अलाउड हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम, सो यू शुड नो इट इज 142 फीट। अब प्रेजेंटली 142 फीट है। अब इसके अलावा 3 ऐसी टेक्निकल कमिटीज बनाई गई, डैम सेफ्टी से रिलेट करती हुई 3 ऐसी टेक्निकल कमिटीज बनाई गई और तीनों कमिटीज ने, जो एक आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कमिटी भी थी, उसने भी 142 फीट को अलाउ कर दिया है। एंड बेसिकली ये एडिटोरियल क्या आर्ग्यू कर रहा है, ये क्या कह रहा है, टाइम टू टॉक। बेसिकली तमिलनाडु और केरला जो बहुत ही फ्रेंडली स्टेट्स हैं एक दूसरे से, इन दोनों को साथ में बैठ के इस इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी रिजॉल्वेबल इशू। अगर इसके अंदर कोई सेफ्टी मेजर चाहिए तो केरला एंड तमिलनाडु बोथ ऑफ देम कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस इट विद देम। सो ये इस आर्टिकल के अंदर बोला गया। मूव ऑन करते हैं। सो एक और आपका आर्टिकल आया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सो इट्स बोथ गुड एंड बैड न्यूज। गुड इसलिए है बिकॉज रैंकिंग इंप्रूव हुई है, बैड इसलिए है कि बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है, स्टिल वी आर एट द लास्ट, एकदम एंड में जो लिस्ट में आते हैं कंट्रीज उसमें ही आ चुके हैं। तो आपके लिए हमेशा इंडेक्स के अंदर 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर एक तो आपको इसका फाउंडर या इसको पब्लिशर पता होना चाहिए। सो इट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो इसका पब्लिशर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक किसकी थी। सो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर फर्स्ट रैंक पता करना बहुत इजी है, इट इज द स्टेट ऑफ नॉर्वे। एंड व्हाई इट इज इजी, बिकॉज सिंस 2019 टिल 2024 एटलीस्ट अभी तक, पिछले इतने सालों में इट हैज बीन नॉर्वे विच हैज बीन एट द फर्स्ट रैंक। इसके बाद आपको यूजुअली किसी के अंदर लास्ट जो भी लास्ट स्टैंडिंग होती है इंडेक्स के अंदर वो पता होनी चाहिए, और इस साल इट इज एरिट्रिया। सो इट्स ऑफ 180 कंट्रीज, इट इज द 180th कंट्री जहां पे प्रेस फ्रीडम सबसे बेकार है, एरिट्रिया। एंड इंडिया की पोजीशन भी कोई अच्छी नहीं है। 2024 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक इज नाउ 159। एंड यूजुअली अगर एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद करनी हो तो आपको 2023 लास्ट ईयर की रैंक भी पता होनी चाहिए, इट वाज 161, विच मींस इंप्रूवमेंट तो है, बट एज कंपेयर टू अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज उसके हिसाब से देखते हुए वी आर एट अ वेरी लो स्टेज। अपनी जो रैंकिंग 159, इट इज वेरी क्लोज टू कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एक्सेट्रा। इनकी भी लो रैंकिंग है और इन सबको अपन फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर काउंट करते हैं। एंड इंडिया इज अराउंड ऑल्सो 159 ओनली, सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। ओके, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। सो अब इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर से एक आर्टिकल लिया है, बाकी का आज तो बहुत ही ज्यादा ओवरलैप था तो सब कुछ कवर हो चुका है। अगेन एजुकेशन से ही है। महाराष्ट्र के अंदर हाई कोर्ट सेज एग्जेम्पशन टू प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम आरटीई एडमिशन। सो व्हाट इज आरटीई? आरटीई स्टैंड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। Right to education. So you must know that in our constitution there is one particular article, Article 21A, 21A जो राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और प्राइमरी एजुकेशन टू 6 to 14 years एज ग्रुप, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एज पर आर्टिकल 21A। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आपका एक एक्ट भी है known as Right to Education Act of 2009. Right to Education Act of 2009. It became implementable from the year 2010. So अगर आपसे एक्ट पूछा था तो 2009 came into fact या effective from, commence कब हुआ? From 2010. एंड इसके अंदर एक जो बेसिक प्रोविजन है वो ये है बेसिकली कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज ग्रुप, सो इजी में समझना हो तो कोई पर्सन अगर SC ST OBC है और प्लस EWS है,
बट ही शुड बी वीकर सेक्शन, वीकर या डिसएडवांटेज ग्रुप से होना चाहिए। तो इन लोगों के लिए 25% सीट्स फ्रॉम क्लास 11, सॉरी फ्रॉम क्लास फर्स्ट, सीट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट आपको रिजर्व रखनी पड़ेंगी। सो रिमेंबर दिस कि अगर कोई भी एज पर आरटीई एक्ट ईडब्ल्यूएस जो डिसएडवांटेज ग्रुप के वीकर सेक्शंस हैं उसके लिए 25% सीट्स आपको क्लास 1 से रिजर्व करनी पड़ेगी इन ऑल काइंड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ऑल टाइप्स एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्कूल्स, एक्सेप्ट योर माइनॉरिटी स्कूल्स। सो रिमेंबर दिस, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सबको रखनी पड़ेगी। अब ये बेसिक जजमेंट क्या यहां पे क्या हुआ है कि महाराष्ट्र ने एक ऑर्डर निकाला और महाराष्ट्र ने क्या बोला कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के रेडियस में, अगर यहां पे कोई प्राइवेट स्कूल है और उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो इसको आरटीई को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, इसको आरटीई को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का मतलब है कि ये वाला जो ऑर्डर है महाराष्ट्र का, ये आपका अप्लाई नहीं होगा, हम पूरा डिसीजन लेंगे उसके बाद लेंगे। बट यहां पे उन्होंने एक डॉक्ट्रिन की बात करी है, एक डॉक्ट्रिन की बात करी है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये क्या होता है? सो डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज बेसिकली कि अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट ने कोई एक्ट बना दिया है, पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बना दिया है, तो उसके बाद अगर कोई रूल्स बना रहा है तो रूल्स बनाते हैं बेसिकली एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस ऑफिसर या मिनिस्टर्स ने कोई रूल्स बनाए, तो जो रूल्स होते हैं, जो ये रूल्स होते हैं, ये एक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते, ये एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कि जो रूल्स होते हैं ये भी कंटिन्यूअस में होने चाहिए एक्ट के। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहता है कि आपको 25% रिजर्व करने पड़ेंगे, और आपने रूल में क्या लिख दिया कि 1 किलोमीटर के रेडियस तक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या हो गया यहां पे, आपने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है, आपने यहां एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो एक लीगल प्रिंसिपल है आपका, ये अलाउ नहीं कर सकता है कोई भी रूल्स या कोई भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को ब्रीच करना जो प्राइमरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस हाई कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है और प्रोबेबली इस टाइप के लॉस को अलाउ किया भी नहीं जाएगा। तो प्रेजेंटली ये सिचुएशन है इन दिस केस। So with this, we are done with the Hindu news analysis as well as the Indian Express. I hope to see you in the next class. From today onwards, we have decided that there would be a separate video for 20 GK questions. So after this, you can go and watch a 20 GK questions video. So thank you and have a very nice day from my side.